Hello everyone, welcome to our next video session. uh, Last class we are continues with respiration, and today we'll go further and complete this chapter, respiration. Okay. Moreover, we also discuss about coronavirus in this video, that how coronavirus affects our respiratory system and why it is lethal, why it is harmful, why so many people are dying due to this virus, what exactly this virus do. Okay, we'll discuss this in our last segment, which is respiratory disorders. Okay, so we were continuous with respiration. We have seen types of respiration along with respiratory system we have started, and today we have completed till gaseous exchange, right? So very fastly, let's some recap of transport of gases. Okay, transport of gases means what? How the gases are transported in our body, कैसे गैसेस जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होती हैं और हमारे एक एक सेल्स तक पहुंचती हैं, तो वो हमें देखना है इसके अंदर में। तो ऑक्सीजन एग्जांपल ले रहे हैं, वी नीड ऑक्सीजन, वी हैव टू रीच दिस ऑक्सीजन टू ईच एंड एवरी सेल। तो ब्लड में कौन जो है वो इसे लेकर के जाता है? वी नो दैट ब्लड कैरीज ऑक्सीजन, बट हाउ? तो ब्लड के आरबीसी में हेमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, इट्स अ प्रोटीन। ओके, सो इट अटैचेस ऑक्सीजन and forms a compound called oxyhemoglobin. Okay, and after that it reaches to the cell, each and every cell. Fine. तो वो हमें देखना ये कैसे हर एक सेल तक इसे पहुंचाता है. Okay, other methods are also there for the transportation of gases, but mainly this method takes place. Okay, carbon dioxide attaches with hemoglobin to form what? कार्बेमिनोहेमोग्लोबिन. ये वो कंपाउंड बनाते हैं और उसको आगे तक पहुंचाते हैं. ओके, आफ्टर दैट कार्बन मोनोऑक्साइड, it also attaches with hemoglobin and forms carboxyhemoglobin. Now here an interesting fact, that the carbon monoxide has higher affinity than carbon dioxide and oxygen. Means अगर हेमोग्लोबिन के सामने में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड हो, तो वो सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अटैच होगा और उसको लेके जाएगा. अब ऐसे क्यों भाई? दिस इज वेरी हार्मफुल गैस, वी नो दैट. और क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है, हाउ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग टेक्स प्लेस. व्हाट डू मीन बाय कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग? तो इसमें हमें ये बताना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो पॉइजनिंग है वो क्यों होती है. we know that oxygen and carbon dioxide both are stable compounds. Okay, both are stable compounds. Carbon monoxide is not a stable compound. तो उसे अपनी स्टेबिलिटी के लिए हेमोग्लोबिन के साथ अटैच होना पड़ेगा, इसीलिए वो सबसे तेजी से वो हेमोग्लोबिन के साथ अटैच कर लेता है. अंडरस्टूड? so this how we have to see. Understood? Okay. Now this is how this transport of gases takes place. Now we have a very important topic called mechanism of breathing. So what is that mechanism of breathing? See, we have studied three types of respiration, cellular, internal and external. So this is under external respiration. यहाँ हमें सिर्फ फिजिकल ओवरव्यू पढ़ना है, दैट हाउ यू इनहेल एंड हाउ यू एक्सहेल. सिंपल. सो व्हाट इज ब्रीदिंग? और ब्रीदिंग में दो पार्ट में इसे हम लोग समझेंगे, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन.
So what is that? Inhalation and exhalation. So first of all, just understood what do we mean by rib cage, diaphragm. Okay, so the rib cage protects your lungs, which is present outside of the lung. Okay, this is the rib cage which protects your lungs. Okay, we have a muscular sheath like structure called डायफ्रम, और इन्हीं रिब केज में एक खास तरह का मसल और है विच इज कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल. ओके, यू हैव टू अंडरस्टूड दिस. क्या है वो? इंटरकोस्टल मसल. और ये इंटरकोस्टल मसल काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिब केज. अब ये रिब केज का इतना कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन क्यों जरूरी है? व्हाई इज इट सो? बिकॉज जो रिबकेज है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा ब्रीदिंग में. कैसे? एक एक करके हम लोग देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे इनहेलेशन टेक्स प्लेस, जब भी इनहेलेशन होता है द रिबकेज मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड. अब क्या होगा यहाँ पे? रिबकेज मूव्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ, एंड आउटवर्ड, बाहर की तरफ, दो तरफ से. क्यों भाई? बिकॉज दे हैव टू मेक स्पेस इनसाइड द लंग्स, क्योंकि लंग्स एक्सपैंड होने वाला है, सो उनको स्पेस बनाना पड़ेगा. सेकेंड पार्ट, डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड. द डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड, स्पेस बनाने के लिए, यानी बाहर, ऊपर और नीचे पूरा स्पेस आ गया. इससे फायदा क्या होगा? दो बातें. अंदर में वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, और प्रेशर घटेगा. द वॉल्यूम राइजेस एंड द प्रेशर डिक्रीजेस. इससे क्या फायदा? इससे ये फायदा कि अगर अंदर का प्रेशर कम होता है तो बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा, और आसानी से एयर फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर अंदर आ जाएगा एयर. दिस इज हाउ द एयर गोज इनसाइड. अंडरस्टूड? इनहेलेशन में क्या हो रहा है? रिब केज मूव्स आउटवर्ड एंड अपवर्ड एंड द डायफ्राम डाउनवर्ड. एंड डायफ्राम डाउन होने का मतलब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है ना? तभी वो स्पेस बनाएगा, और तभी आसानी से अंदर में वॉल्यूम ज्यादा होगा, प्रेशर कम होगा, तभी बाहर का एयर आसानी से हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर आसानी अंदर आएगा. दिस इज कॉल्ड इनहेलेशन. अंडरस्टूड? नाउ सेकंड पार्ट इज द एक्सहेलेशन. सो व्हाट हैपेंस इन एक्सहेलेशन? In exhalation we have rib cage moves downward and inward. जो rib cage है वो डाउनवर्ड और इनवर्ड उल्टा हो रहा है. डाउनवर्ड मतलब जो rib cage बाहर था यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अंदर की तरफ आया, और जो ऊपर गया था वो नीचे की तरफ आया. और डायफ्राम में क्या चेंज हुआ? डायफ्राम जो नीचे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ये रिलैक्स होकर के अपवर्ड मूव हो गया. ठीक, इससे क्या हुआ? पूरा अपोजिट कीजिए. अंदर में पहले ज्यादा स्पेस था, अब सब अंदर की तरफ आ गए, स्पेस कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया. ओके, वॉल्यूम सब कम हो गया, तो एयर को बाहर निकालना है तो प्रेशर अंदर में हाई हो गया, और हाई होने की वजह से क्या हुआ? बाहर लो हुआ और अंदर हाई टू लो आसानी से ब्रीथ आउट हो गया. दिस इज हाउ एयर गोज आउटसाइड. तो ऐसे करके हम लोग ब्रीदिंग के प्रोसेस को देखते हैं. ओके, अंडरस्टूड? दिस इज हाउ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस. इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन. तो ऐसे करके हम लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा. दिस इज टोटली अ फिजिकल प्रोसेस. नो एटीपी फॉर्मेशन, इस सब की इसमें कुछ भी मेंशन नहीं करना है हमको. जस्ट देखना है कैसे हम लोग सांस लेते हैं, कैसे सांस छोड़ते हैं, इसके सारे मैकेनिज्म के बारे में हमें इसमें बताना है. सो द क्वेश्चन कम्स फॉर 3 to 5 मार्क्स. मेक दिस डायग्राम, राइट स्टेप बाय स्टेप. इनहेलेशन हेडिंग देना है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप लिखिए, एक्सहेलेशन में भी, और उनको थोड़ा एक्सप्लेन करना है. ऐसी करने से ही हमें मार्क्स मिलेगा, बिकॉज स्टेप बाय स्टेप पर मार्क्स है. अंडरस्टूड? ओके, सो आफ्टर ब्रीदिंग हम लोग बात करेंगे ब्रीदिंग रेट पे. सी ब्रीदिंग है
कुछ तो होगा उसका रेट, रेट इन द सेंस कि हाउ वी इनटेक एंड एक्सटेक। अच्छा, बिफोर गोइंग टू ब्रीदिंग वी हैव टू सी द सम परसेंटेज ऑफ ब्रीदिंग रेट। सी इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड जो एयर है, जो भी हम लोग सांस ले रहे हैं वो सारा प्रोसेस ले रहे हैं सांस, मतलब सारी गैसेस अंदर आती हैं और सारी गैसेस जो है वो बाहर आती लेकिन कन्वर्ट भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कंस्टिट्यूएंट में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, नाइट्रोजन, अदर गैसेस, सब गैसेस हैं। तो ऑक्सीजन वी नो दैट अबाउट 21%, तो 20.9% हम सांस ले रहे हैं अंदर में, उतना ऑक्सीजन जो है हम लोग आसानी से ले लेते हैं। तो ये इतना परसेंटेज अंदर आ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जितना है उतना ले रहे हैं। वेरिएबल अमाउंट में वाटर वेपर है जो कि कम होगा अमाउंट में, ज़्यादा नहीं होगा। नाइट्रोजन गैस है वो 78.1% इज देयर, एंड नोबल गैसेज और अदर गैस, इतना अमाउंट इनहेल्ड है। बट व्हाट हैपन आफ्टर एक्सहेलेशन, जब हम लोग सांस छोड़ रहे हैं, तो जब भी सांस हम लोग छोड़ेंगे तो यही 21% देखो 16% के फॉर्म में बाहर आ रहा है। इसका मतलब कि गैसेस जो बाहर आ रही हैं वो थोड़ी कम होकर के बाहर आ रही है, इसका मतलब उतना ऑक्सीजन यूज हो गया। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड 4.0, फाइन, जितना का ऑक्सीजन अंदर यूज हुआ उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होकर के बाहर आ गया। एंड वी नो दैट इन रेस्पिरेशन का वाटर भी बाहर आता है तो वो भी एयर बाहर आएगा। जैसे नाइट्रोजन जितना अंदर लिए उतना ही बाहर निकाले, कुछ यूज नहीं हुआ अंदर में, and other gases also. So this is how the percentage of the gases present in inhaled and exhaled air. Understood? Okay. Now after that, so breathing rate. So कितना breathing rate है हमारा? Normally हम लोग 15 से 18 बार सांस लेते हैं, 15 to 18 times, 15 to 18 times हम लोग सांस लेते हैं। Understood? 15 to 18 times. Just remember this point. Okay. After that, just imagine करो एक बार हुआ ऐसा 17 से 18, 15 से 18 बार करते हैं। कोई लोग 15 ही करते हैं, कोई लोग 18 तक करते हैं, वो डिपेंड करता है। ओके, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब एक्सरसाइज होता है देन इट goes to 22 to 25 times, means 15 to 25 टाइम्स तक। क्यों ऐसा है? ब्रीदिंग रेट हमारा ज्यादा क्यों है? ओके, इसके पीछे रीजन क्या है? दैट जब भी कभी हम लोग कोई बहुत हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, बहुत विग्रेस एक्सरसाइज करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। वी नीड मोर एनर्जी एट दैट टाइम। टू गेट एनर्जी एट दैट टाइम वी हैव फूड, ग्लूकोज हमारे बॉडी में एनफ है, बहुत है, बट वी डोंट हैव एनफ ऑक्सीजन टू ऑक्सीडाइज दैट ग्लूकोज एंड पायरुविक एसिड, हमारे पास इतना तो है नहीं। टू गेट दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी वी नीड मोर ऑक्सीजन, इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। और जल्दी जल्दी क्यों लेते हैं? क्योंकि एक बार में हम ज्यादा ऑक्सीजन नहीं ले सकते, कैपेसिटी नहीं है बॉडी की उतनी एक्सपैंड होने की, राइट? इसीलिए एक्सरसाइज में हम लोग बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। सेम थिंग हैपेंस विद फिशेस ऑल्सो, एम्फीबियंस ऑल्सो। उनका रेट ऑफ ब्रीदिंग रेट नॉर्मली बहुत ज्यादा है। वाई? क्योंकि पानी में रहते हुए उनको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, पानी में बहुत कम ऑक्सीजन है, इसलिए बहुत थोड़ा थोड़ा और बहुत जल्दी जल्दी वो सांस लेते हैं। ओके, अंडरस्टूड? सो दिस इज द ब्रीदिंग रेट। नेक्स्ट पार्ट, this is experiment, how to show that CO2 is released more while expiration। एक्सपायरेशन के टाइम में ज्यादा CO2 हमें कैसे रिलीज करना है? तो इसके लिए तो हमको एक बात समझना पड़ेगा कि ये दिखाने के लिए कि CO2 ज्यादा सिक्रेट हो। ये एक चीज देखो डायग्राम में, यहाँ 0.03 इनहेल एयर में और एक्सहेल में 4.0 है, यानी एक्सप्लेन हमें ये प्रूफ करना है कि एक्सहेल में ज्यादा CO2 है। परसेंटेज से तो हमने थ्योरेटिकली देख लिया, बट एक्सपेरिमेंटली कैसे पता चलेगा? तो वी नो दैट टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ CO2 इज इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। व्हाट इज लाइम वाटर? लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
तुमने एक रिएक्शन पढ़ा हुआ है, CO2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्स CaCO3 प्लस वाटर। तो CaCO3 वो मिल्की कंपाउंड है जो बनेगा और हमें पता चलेगा। फाइन। सो टू शो द CO2 इज रिलीज मोर वाइल एक्सपायरेशन, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, यहाँ माउथ डालना है हमें और एक बार खींचना है। तो देखो दोनों जगह पे लाइम वाटर है, इनहेलेशन का एयर यहाँ आएगा और एक्सेलेशन का एयर यहाँ आएगा। तो जब इनहेल करेंगे हम लोग कोई भी चीज को तो उसमें जो CO2 है वो इस लाइम वाटर में पड़ेगा। तो वी नो दैट इनहेल एयर में CO2 बहुत कम है, तो वो इस लाइम वाटर को टर्न मिल्की करेगा, लेकिन थोड़ा सा करेगा, फेडेड होगा, पूरा वाइट नहीं होगा, ये नोट करेंगे। और जब एक्सपायरेशन सांस छोड़ेंगे माउथ से इसके अंदर में, तो फिर यहाँ देखेंगे हम लोग कि इसमें कितना ज्यादा एयर कितना क्या हो रहा है। तो इसमें देखेंगे ये पूरा व्हाइट हो जाएगा। क्यों व्हाइट हुआ? इसका रीजन वही है, एक्सपायरेशन में CO2 ज्यादा होता है, ज्यादा CO2 इस लाइम वाटर को ज्यादा मिल्की करेगा और कम CO2 इस लाइम वाटर को कम करेगा। ए और बी, इससे कंपैरिजन हो जाएगा हमारा। फाइन, दिस इज एक्सपेरिमेंट विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक ऑल्सो। तो एनसीईआरटी में भी यही सेम चीज दिया हुआ है, तो वहां पे जाकर के हमें मेंशन कर लेना है या देख लेना है ये कैसे हो रहा है। वहां पे भी उसमें पिचकारी का एक एग्जांपल दिया हुआ है, पिचकारी में, कि पिचकारी में एयर एयर आप लोग खींच लीजिए, एयर में इनहेल कर लिया हमने और उसको लाइम वाटर में डालिए तो वो कम मिल्की करेगा। और वही फिर दूसरा है, फूक दीजिए दूसरे में, वहां हमने एक्सेल किया है, एयर छोड़ा है, तो वो उसको ज्यादा मिल्की करेगा। तो सिंपली एक्सपेरिमेंट के थ्रू हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ योर CO2। द लास्ट टॉपिक इज द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। सी, क्या है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स? ऐसे डिसऑर्डर जो कि रिलेटेड है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से, कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कहाँ कहाँ उसको कुछ दिक्कतें आती हैं। वी हैव सीन इन डाइजेशन प्रोसेस, वहां पे हमने कई तरह के डिजीज देखे, जॉन्डिस देखा, कॉन्स्टिपेशन देखा, डायरिया देखा, कितनी सारी डिजीज थी, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव ऑर्गन से रिलेटेड था। सेम हेयर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। और एक बात हमें इसमें समझना जरूरी है, दैट इन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स this is the one of the most common disorders in the world. Okay, why is it? See, disorder जो है हमारा डाइजेशन डिसऑर्डर था, उसमें ज्यादा कॉमन नहीं है वो। आप एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो मन नहीं जाएंगे, अगले दिन आप खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर एक दिन सांस नहीं लेंगे, जैसे इमेजिन, तो आप बच ही नहीं सकते हैं। इसीलिए बहुत कॉमन डिजीज है और कई काफी लीथल डिजीजेस में आता है ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। Okay, understood? Now, first is the emphysema. The emphysema, bronchitis, asphyxia, ये सब COPD में ही आते हैं, और भी डिजीज है, लेकिन तो अलग करके कैटेगराइज कर दिया ताकि आसानी से समझ सके हम लोग। एम्फीसेमा, इसको अगर हम लोग एक सिंपल एक सेंटेंस में समझाने की कोशिश करें तो कह सकते हैं रप्चर्ड रप्चर्ड हाउ कैन से रप्चर्ड एल्वियोलाई। जब एल्वियोलाई रप्चर्ड हो जाए, खराब हो जाए, क्यों होगा खराब? अगर बहुत सारा कार्बन उसमें जमा हो जाए, उसकी वजह से उसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। ऐसा क्यों होगा? ऐसा तब होगा जब हम लोग बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्मोक कर रहे हैं इन द सेंस कि मान लो आप ट्रैफिक वाली जगह पे हैं, वहां बहुत ज्यादा कार्बन वाली चीजें आ रही हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है, सब आ रहा है, वो इकट्ठा हो रहा है, खाना बना रहे हैं, खाना पका रहे हैं, वहां पे इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है उस जगह पे। या फिर आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्मोकिंग कर रहे हैं, सिगरेट बीड़ी या सिगार वगैरह सब ले रहे हैं, जिसकी वजह से वो हमारे लंग्स के एल्वियोली में इकट्ठा हो रहा है। इकट्ठा होने से क्या होगा? एक्युमुलेशन होने की वजह से क्या होगा? वो वहां के सेल्स के अंदर में चले जाएंगे और वहां के सेल्स एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे और खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, जिसकी वजह से वहां पे एल्वियोली काम नहीं करेगा। दैट्स व्हाई वी कॉलिंग what? Ruptured alveoli. Okay. Bronchitis means the blockage of bronchioles. Bronchioles का ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी सांस नहीं लेते पाते हैं और ब्लॉकेज हो जाता है। कई रीजन से हो सकता है ऐसा। एस्फिक्सिया, इट इज द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन द ब्लड। जब ब्लड में डिफ्यूजन ना हो, CO2 अंदर ही रह जाए, बाहर ही ना आए, तब CO ऑक्सीजन कैसे जाएगा अंदर? जा ही नहीं पाएगा।
इस कंडीशन को एस्फिक्सिया बोलते हैं। ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है जब हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, जहाँ पे जहाँ ऑक्सीजन कम है उस जगह पे हमें प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसे नॉर्मल जगह पर रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसी जगह पर जाते हैं तो होता है। सीओपीडी इन सबको लेकर के बोलते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेज। इसके अंदर बहुत सारी डिजीज आती हैं और इनमें जो भी डिजीज आएंगी दे आर नॉट क्यूरेबल, सिर्फ बचाव हो सकता है एक बार वो डिजीज हो गई तो, बिकॉज एक बार अगर हमारा डिस्ट्रॉय हो जाए तो दोबारा फिर ठीक नहीं हो सकता, ठीक है, और दोबारा रिपेयर नहीं हो पाता है। हमारी बॉडी में दूसरे एल्वुली से ही हमें काम चलाना पड़ेगा। ऐसा एल्वुली बहुत सारा है, और एक क्वेश्चन भी आता है बहुत सारा हम लोगों को कि जो लोग सिगरेट पीते हैं वो तुरंत क्यों नहीं मर जाते हैं, क्योंकि सिगरेट तो ब्लॉक कर रहा है, जाकर वहां पे स्टोर कर रहा है। तो एक्चुअली सिगरेट का जो भी स्मोक कार्बन है वो जा करके एल्वुली को ब्लॉक करता ही है, लेकिन हमारा बॉडी भी दूसरे एल्वुली से काम करता है। तो जब तक कि लगभग मोर देन 50% एल्वुली हमारा खत्म ना हो जाए तब तक फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, और उसके बाद जो है वो ब्रीदिंग या सांस लेने की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं ऐसे, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा ये हो रहा है। नाउ आफ्टर दैट अस्थमा, इट्स एलर्जिक डिजीज। अस्थमा एक एलर्जिक डिजीज है जो कि राइट फ्रॉम में बर्थ होता है, और किसी किसी कंडीशन में देखते हैं ये जेनेटिक भी चला जाता है। तो अस्थमा में क्या होता है कि बॉडी खुद ही इतना हाइपर सेंसिटिव है जिसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम होता है। हाइपर सेंसिटिव होने का मतलब यही हम यहाँ समझ लेते हैं। हाइपर सेंसिटिव का मतलब ये हुआ कि बॉडी जो जो चीजें रिलीज कर रहा है उसी की वजह से उसको दिक्कत हो रहा है। जैसे ज्यादा कफ सिक्रेट करना, अब वो कफ ब्लॉक कर देगा, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उनको पंप वगैरह सब यूज करना होता है। इसका भी कोई इलाज नहीं है, सिर्फ बचाव ही इलाज है। निमोनिया एक और डिजीज है, इन्फेक्शन डिजीज है, जो हालांकि बच्चों को भी आसानी से हो जाता है या ओल्ड पीपल को भी हो जाता है निमोनिया। तो इतनी सारे डिजीजेस हैं। एक और डिजीज में आई है दैट इज कॉल्ड द सार्स। व्हाट इज दैट? सार्स, इट इज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या है ये सार्स? ये जुड़ा हुआ है उसी डिजीज से जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कोरोना। क्या है ये कोरोना? सी, जो कोरोना एक वायरस, एक ग्रुप ऑफ फैमिली है वायरस का, ओके, बट इसका एक नाम दिया गया है दैट इज कॉल्ड कोविड-19। नाम से समझ में आ जाएगा कोविड-19 किसको कह रहे हैं हम लोग। सी, कोविड-19 मीन्स CO फॉर कोरोना, V फॉर वायरस, VI फॉर वायरस एंड डिजीज, एंड 19 मीन्स 2019 में ये वायरस अपने आप में म्यूटेट हो गया, कुछ चेंज आ गया इसके अंदर में, 2019 के अंदर में ये चेंज हुआ, जिसका इलाज किसी भी दूसरे वायरस की तरह नहीं है, इसीलिए अभी तक इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। फाइन। क्यों ये वायरस इतना खतरनाक है, क्या ये क्यों अलग है और सब वायरस से, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं इसके अंदर में। सी, कोई भी जो वायरस होता है ये बॉडी में आने के बाद लिविंग की तरह बिहेव करता है और बॉडी के बाहर नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है, ऐसा हमने पढ़ा है पहले भी। तो होता क्या है इस वायरस का, पहले थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, एक स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर में क्या है। सी, वायरस के आउटर कवरिंग में स्पाइक प्रोटीन है, एक तरह का प्रोटीन है जिसका इस्तेमाल वो हमारे सेल्स से अटैचमेंट के लिए करता है, हमारे सेल से चिपकता है जाकर इसी स्पाइक प्रोटीन से और अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर डालता है, ठीक है। एनवेलप प्रोटीन ये कवरिंग करता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन ये सब इसके कवरिंग वाले प्रोटीन मेम्ब्रेन है, ठीक। क्यों कहा गया है हमें कि वायरस जो है ये मर जाएगा अगर हम लोग हाथ धो लें, सैनिटाइज कर दें या अल्कोहल से लगा लें, क्योंकि वो जो अल्कोहल है या डिसइंफेक्टेंट है या जो साबुन है वो इसी इसके मेम्ब्रेन को तोड़ देता है, जिसकी वजह से ये वायरस डेड हो जाता है। जस्ट रिमेंबर, इसीलिए वो आसानी से मर रहा है। लेकिन हमारे पास कोई खास दवा नहीं है अगर ये बॉडी के अंदर है तो। अगर किसी का इम्यून सिस्टम अच्छा है तो वो आसानी से रिकवर भी हो रहा है और उसकी डेथ नहीं हो रही है, लेकिन जिसका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है या जिसको पहले से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं उन लोगों की डेथ आसानी से हो रही है, क्योंकि वहां पे ये वायरस आसानी से उनके एक एक सेल तक पहुंच जा रहा है, उनका बॉडी उनसे लड़ नहीं पा रहा है, ठीक। बॉडी तभी तक लड़ सकता है, दवा तभी काम करेगी जब आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा अच्छा हो। तो इनके पास ये आउटर कवरिंग है और अंदर में इनके पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, न्यूक्लियो कैप्सिड प्रोटीन एंड RNA। इनका जो RNA है वो प्रोटेक्टेड है, नॉर्मली वायरस का प्रोटेक्टेड नहीं होता है, इस वायरस का जो RNA है वो प्रोटेक्टेड है न्यूक्लियो कैप्सिड मतलब प्रोटीन से ही प्रोटेक्टेड है। अंदर में एक फिर एक और प्रोटीन का लेयर इसको मिला हुआ है,
ये इसका एक 3D स्ट्रक्चर डायग्राम है। लिपिड मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन प्रोटीन है, एनवेलप प्रोटीन है जो बाहर में है, और ये स्पाइक प्रोटीन है जिससे वो अटैचमेंट करता है। ठीक, ये हमें नुकसान कैसे पहुंचा रहा है, सिंपल चीज। और एक चीज और हम लोग जान लें कि हमने पढ़ा था एंटीजन एंटीबॉडीज के बारे में। तो जो कोविड-19 का जो वायरस है, ये जैसे हमारे बॉडी में आता है तो हमारा बॉडी इसे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाता है और अपना जो सो करना है वो करता है। हमारे बॉडी का इतना कुछ करना ही हमारे लिए हार्मफुल है। इसको हम लोग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कह सकते हैं। ऑटो इम्यून मतलब हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम ही हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है। कैसे? एक नेक्स्ट डायग्राम में देखिए कि सबसे पहला वाला देखिए ऊपर में कि ये एक हेल्दी पर्सन है जिसका एल्वेओली कितना प्रॉपरली वर्क कर रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि उसके सबसे ऊपर में देखेंगे हम लोग, डायग्राम छिप गया, यहाँ पे देखेंगे हाँ कि इसमें इसके पास एल्वेओली है, बाहर में चारों तरफ ब्लड वेसल्स जाने के तरीके हैं, नॉर्मल हेल्दी पर्सन है। जैसे ये सार्स का वायरस इस पर अटैक करता है, ये रहा सार्स का वायरस कोविड-19 अटैक करता है, तो हमारा बॉडी जो है वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ क्या करता है, अपना एक फ्लूइड बनाता है ताकि अपना एंटीबॉडी सिक्रेट करता है ताकि उसको वो मारे, उसको खत्म करे। ठीक है, इसी से करते करते में जब बॉडी हमारा बहुत सिक्रीशन करने लगता है, सेल्स वगैरह सब चीज सिक्रीशन करने लगता है, तो वही चीज हमारे पूरे एल्वेओली को ब्लॉक कर देता है। अगर इन्फेक्शन कम हुआ है तो चलेगा, थोड़ा बहुत डिफिकल्टी होगा, लेकिन अगर ये हमारे सारे एल्वेओली पहुंच जाए वायरस, तो हमारा बॉडी सारे एल्वेओली में अपने वो फ्लूइड सिक्रेट कर देते हैं जिससे हमारा एल्वेओली ब्लॉक हो जाता है। तब पेशेंट को एक्सट्रीम सीवियर डिफिकल्टी होती है सांस लेने में, और तब उसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी मशीन पे, जिसमें वो सांस मशीन के थ्रू उसके बॉडी में जाएगा। तो ये ऐसे करके ये वायरस हमारे बॉडी में आता है। ठीक है, इसीलिए बोला गया है कि इन्फेक्शन कि हमें फोमाइट बॉर्न डिजीज है ये। फोमाइट बॉर्न का मतलब क्या है? अगर आपने डोर हैंडल टच कर लिया, मान लो किसी को सार्स पर्सन, किसी को वो डिजीज है पहले से, उसने डोर हैंडल टच किया, उसके हाथ में वायरस होगा ही पहले से, हम भी उसी डोर हैंडल को टच करते हैं और वो हाथ में हमारे आ जाता है वो, और हम लोग भूल जाते हैं, उसी हाथ को आंख में लगा लेते हैं, नाक में लगा लेते हैं, मुंह में लगा लेते हैं बिना हाथ धोए ही, तो आसानी से हमारे अंदर चला गया वो। ऐसे पर्सन टू पर्सन कैरियर बन करके डिजीज बहुत तेजी से फैल रहा है। ओके, इसकी मेडिसिन बनाई जा रही है, अलग अलग देशों में इस पर अलग अलग तरह काम हो रहा है। हमने पढ़ा था कि जो इसका वैक्सीन है बनाने का एक तरीका है, जैसे किसी वायरस को हम लोग डेड करके या वीक करके आसानी से किसी बॉडी में डाल देते हैं और बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है और उससे लड़ता है। तो हम साइंटिस्ट आर ट्राइंग हार्ड, वो लोग क्या कर रहे हैं, किसी का स्पाइक प्रोटीन हटा दे रहे हैं। स्पाइक प्रोटीन से क्या हो रहा है कि वो जो वायरस है वो खत्म हो जाएगा, उसका जेंटीमेटर बाहर आ जाएगा, वो मर जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग डिफरेंट कंट्रीज जो है वो इस पे वर्क कर रही हैं। ठीक है, कोविड-19 पे तो धीरे धीरे इस पे फंक्शनिंग हो रहा है। ओके, सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर इज। होपफुली साइंटिस्ट इसका जल्दी जल्दी वैक्सीन खोज लें। हमारे पास कोई भी अभी स्पेसिफिक दवा नहीं है इस डिजीज के लिए। हाँ, कुछ दवाएं हैं जो किसी बॉडी में इफेक्टिवली काम कर रही हैं, वो आदमी जल्दी ठीक हो रहा है, किसी में थोड़ा लेट में काम कर रही हैं, बॉडी टू बॉडी इस पर काम कर रहे हो रहा है, लेकिन एक स्पेसिफिक दवा नहीं है। जब तक वैक्सीन आए तब तक हमें वेट करना होगा, बचना होगा एक दूसरे से, क्योंकि वैक्सीन अगर नहीं आएगा तो ये डिजीज फैलता जाएगा। ऐसा नहीं है गर्मियों में खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो दिस इज हाउ अबाउट दिस कोविड-19 virus. Okay, so hope you enjoyed this session, and we have completed respiration part of live process, and in next class we'll start transportation. Fine, so go through it properly and have a nice day.